Good morning, student. Today we are going to start the new topic of surface chemistry. That is colloidal state of matter. Student, there was a scientist who classified the solution of matter into two categories. One, crystalloid, and second, colloid. These two categories of classification of matter is based on diffusion या permeability through semi-permeable membrane. Scientist ने थॉमस ग्राफ in 1861 permeability of solution यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस के सॉल्यूशन लिए और उनकी जो है फिल्टर पेपर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन है या फ्लो है, मान लीजिए कि ये फिल्टर पेपर है या इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इसके थ्रू डिफ्यूज होने की जो टेंडेंसी थी, इसके बेस पे सब्सटेंस के सॉल्यूशन को टू टाइप से क्लासिफाई किया, एक क्रिस्टलॉइड और दूसरा कोलॉइड. तो crystalloid are those substances whose solutions are able to diffuse through filter paper or semi-permeable membrane. For example, aqueous solution of sodium chloride, sugar or urea. These solutions can pass through semi-permeable membrane or filter paper. That is why the solution of these substances are known as true solution, and these substances are known as crystalloid. While the solution of those substances which are unable to pass through semi-permeable membrane or filter paper, that substance are known as colloid. For example, solution of albumin, starch, glue, gum, gelatin, etc. These solutions cannot diffuse through semi-permeable membrane, and the solution of these substances are known as colloidal solution, and these solutions are known as colloids. तो डिफ्यूजन के बेस पे दो तरह के होंगे, क्रिस्टलॉइड एंड colloid. But this classification which was given by Thomas Graham was failed because crystalloid in different set of condition behave as colloids. यानी कि कुछ colloids ऐसे हैं या crystalloid ऐसे हैं जो डिफरेंट कंडीशन में कभी कभी वो colloid की तरह बिहेव करते हैं या colloid जो होते हैं वो crystalloid की तरह बिहेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इन वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो होता है ये जो है क्रिस्टलॉइड कहलाता है, crystalloid, because its solution can diffuse through semi-permeable membrane. लेकिन अगर हम इसी को दूसरे सॉल्वेंट में हमने इन बेंजीन लेते हैं इसको, तो बेंजीन में इट कैन नॉट पास थ्रू semi-permeable membrane. तो बेंजीन की सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं तो उस तरह का जो सॉल्यूशन है दैट बिहेव्स एज अ colloid. इट मींस सोडियम क्लोराइड है दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, क्रिस्टलॉइड भी और
कोलॉइड में। तो इसलिए ये थ्योरी जो है फेल हो गई, केवल डिफ्यूजन के बेस पे या परमिएबिलिटी के बेस पे जो है इसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो दूसरा जो है सब्सटेंस को कोलॉइड या क्रिस्टलॉइड क्लासिफाई करने के लिए दूसरा बेसिस ले गया साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर के थ्रू सब्सटेंस वही पास करेंगे जिनका साइज और पार्टिकल के साइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर के जो पोर्स है उनके पोर्स के साइज से छोटा हो। इट मींस कि सॉल्यूशन सब्सटेंस को उनके पार्टिकल के साइज के बेस पे क्लासिफाई करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट हमने ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, या इसको आप कह सकते हैं कोलॉइड, सिंपली हम इसको शॉर्ट में कोलॉइड, और थर्ड सस्पेंशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स there are 3 types of solution: true solution, colloidal solution and suspension. True solutions are those solutions in which size of particle is less than 1 nanometer. जहाँ पर पार्टिकल का साइज कितने हैं 1 नैनोमीटर से कम। These are homogeneous and transparent. For example, aqueous solution of sodium chloride or any other salt, aqueous solution of sugar or urea. Second, colloidal solution. तो colloidal solution या colloids are those substance in which size of particle range from 1 nanometer to 1000 nanometer. जहाँ पर पार्टिकल की साइज इस रेंज में होगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स। These colloids are heterogeneous. इनका जो नेचर होता है वो हेटेरोजीनियस होता है। And these are translucent. Third, suspension. Those solutions in which size of particle is greater than 1000 nanometer. Those solutions are known as suspension. And these are also heterogeneous and opaque. इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल होता है मडी वाटर। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अगर हम इन तीनों में देखें तो ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिंपल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इन कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है सिंपल पेपर से सिंपल फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं, यानी कि डिफ्यूज होते हैं, बट दे आर अनेबल टू पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इसके पार्टिकल जो है ना तो फिल्टर पेपर से पास होते हैं और ना ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं। तो दीज आर द सॉल्यूशन, इनके बीच जो है डिफरेंस है, कुछ कॉमन डिफरेंस। जैसे ट्रू सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट होता है, साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से कम होता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिंपल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू डिफ्यूज होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन जिसका साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में हो, और ये हेटेरोजेनियस होते हैं, यानी कि इसमें 2 फेज पाए जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो सकते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते। सस्पेंशन, इनमें साइज ऑफ पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, ये हेटेरोजेनियस होते हैं और ओपेक इन नेचर होते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस classification we are able to define colloidal space, यानी कि colloids is not a matter, यानी कि यह एक मैटर नहीं है, because it is a state of matter which can be obtained by preparing a solution in which size of particle range from 1 nanometer to 1000 nanometer. So hence we can define as कि it is a state of matter in which size of particle range from 1 nanometer to 1000 nanometer and heterogeneous. Now student, as for true solution, you know that solution contains two parts. One is called solute and other is called solvent. अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया, जैसे हमने सॉल्ट लिया और उस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो ये हमारा ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर जो एक्सिस में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो टर्म्स हम यूज करते हैं सॉल्यूशंस के लिए। इन द सेम वे कोलॉइडल सॉल्यूशंस के लिए भी हम दो टर्म्स यूज करते हैं, दैट आर डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे हम सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्वेंट होता है, जैसे ये हो गया सॉल्वेंट, यानी कि इन कोलॉइडल स्टेट द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सिस इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम एंड द अदर which was distributed in dispersion medium, that is known as disperse phase. These two component apart make a colloidal solution of colloids. Dispersion medium solvent हो गया और dispersion phase solute. Now classification of colloidal solution. Classification of colloid. तो colloidal solution को हम क्लासिफाई करने के लिए जो है डिफरेंट बेसिस ले सकते हैं। पहला हम बेसिस ले सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ physical state of dispersion medium and disperse phase। डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज के फिजिकल स्टेट के बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ interaction
between dispersion medium and disperse phase. तीसरा, on the basis of size of particles, या इसको आप नेचर कह सकते हैं, of disperse phase. ये तीन बेसिस है हमारे पास क्लासिफिकेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। यू नो दैट कि किसी भी सब्सटेंस के जनरली 3 स्टेट पाए जाते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज, अगर हम ये 3 कॉमन स्टेट लेकर चले तो इन 3 कॉमन स्टेट, then student, on the classification of colloidal solution on the basis of physical state of dispersion medium and dispersion phase, so there are 8 types of colloidal solution. First, if you take dispersion medium as liquid, so dispersion medium as liquid, तो यहाँ पर dispersion phase सॉलिड रहता है, कि सॉलिड इन लिक्विड, दैट colloids आर नोन एज सॉल्ट। इनका एक कॉमन नेम है, इनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। और इसका एग्जांपल हो गया सल्फर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट या पेंट। सेकंड, लिक्विड इन लिक्विड मींस इवन बोथ dispersion medium and dispersion phase are liquid state, that colloids are known as emulsion, for example milk and butter, etc. Second, when gas is dispersion phase and liquid is dispersion medium, that colloids are example of soap, leather soap. नेक्स्ट में हम यहाँ से नेक्स्ट में तो यहाँ से हमने 3 लिए, यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड स्टेट है और इन डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिफरेंट डिस्पर्शन फेज है। अगर हम डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही सॉलिड लेते हैं तो सच टाइप ऑफ सॉल्ट आर नोन एज एलॉय या जेमस्टोन्स, इन विच बोथ dispersion phase and dispersion medium are solid. Second, liquid and solid means liquid is dispersion phase and solid is dispersion medium, that colloids are known as gel, for example hair cream या hair gel. Gas in solid, that is example of foam rubber. Solid in gas, अगर हम यहाँ पर गैस देखें तो गैस डिस्पर्शन मीडियम है और सॉलिड क्या है, डिस्पर्शन फेज है, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल इन एयर, दैट इज नोन एज colloids. Liquid in gas, fog या mist, these are the examples of colloids. तो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज जब अलग अलग स्टेट में हो तो 8 टाइप्स का बनता है colloidal solution। एक हम एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि गैस का जो है colloidal solution नहीं मिल रहा है। ओके स्टूडेंट,